اتفاق گروپ آف کمپنیز کے مالک میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے چچا زاد بھائی میاں طارق شفیع کی نماز جنازہ اتفاق مسجد ماڈل ٹاؤن میں ادا کر دی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کریں۔ قدیم الاسلام یا عظیم الاسلام یا ربنا المنان یا ربنا المنان۔ جناب الحاج بابے نو وے گیا کھلوگی علیہ الرحمہ، یا اللہ بعض حقوق کے لیے لاتی ہوں گے، بعض نہیں لاتی ہوں گے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تسلیم کے بعد ان کو، یا اللہ ان کی قبر کو نور والی قبر بنا دینا، بڑی نور بنا دینا، یا اللہ کریم حضور کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں ان کی قبر و برکت سے جنت کا باغ بنا دینا، یا اللہ ان کے بھائیوں کو اور اقربا کو، دوستوں کو جو قدروں کا نفرا، یا اللہ ان کو صبر جلیل عطا فرما دے، اتنے مسلمانوں کی سفارش ان کے حق میں قبول فرما دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی والدیہ الصالحین۔ ایج بلاک اتفاق مسجد میں میاں طارق شفیع کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فصیح اللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ فصیح اللہ بتائے گا کون کون سی اہم شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جی بالکل، میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے چچا زاد بھائی میاں طارق شفیع جو کہ حرکت قلب بند ہونے کے بعد جن کا انتقال ہوا تھا، ان کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن میں اتفاق مسجد میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اگر بات کی جائے تو صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف، ایم پی اے بلال یاسین، ایم پی اے پرویز، ایم پی اے جو ہیں، اس کے علاوہ اگر سیاسی سے ہٹ کے اگر کاروباری شخصیات کی بات کی جائے تو اس میں نامور جو ہیں گوہر اجاز، سلطان گوہر ابراہیم مراد سمیت چیمبر کے صدر، اس کے علاوہ نائب صدر حامد ناصر امیر سمیت دیگر جو اہم سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اور اب ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو یو ای ٹی کے ساتھ قبرستان جہاں پر تدفین کی جانی ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے فصیح اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کرتے ہیں این سی او سی کے ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلوں کی۔ تو تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ این سی او سی نے چھٹیوں کا اختیار صوبوں کو دے دیا ہے اور بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس تک والدین اور طلباء کا تجسس برقرار رہے گا۔ کاروباری مراکز کے اوقات کار رات 10 بجے تک بڑھا دیے گئے۔ ریسٹورنٹ کو 100% آؤٹ ڈور اور 50% انڈور ڈائننگ کی اجازت مل گئی۔ این سی او سی کے اجلاس میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے، لیکن تعلیمی اداروں میں گرما کی تعطیلات پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ این سی او سی حکام نے 2 ہفتے چھٹیوں کی تجویز دی، پنجاب نے 1 ماہ کی تعطیلات پر زور دیا۔ یہ فیصلہ صوبوں پر چھوڑ دیا گیا، اب وہ اپنی سہولت سے گرما کی تعطیلات کا تعین کریں گے۔ والدین اور طلباء نے اپنی نظریں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس پر جما لی ہیں۔ کورونا کی وبا میں واضح کمی پر 1 جولائی سے 31 اگست تک مختلف پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے۔ کاروباری مراکز کے اوقات کار رات 10 بجے تک کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پیٹرول
पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात के अहम कारोबार 24 घंटे खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, ताहम इंडोर पर 50% की पाबंदी है। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करने का लाहे अमल बनाया जाएगा। शादी की तकरीब आउटडोर होगी, जिसमें 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले 200 अफराद इंडोर शादी की तकारीब में शरीक हो सकेंगे। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ारात को SOPs के इत्तलाक के साथ दोबारा खोलने की इजाजत दी गई है। फैसले के मुताबिक रात 1 बजे तक सिर्फ वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमा खोलने की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% की गुंजाइश के साथ रवां दवां रखने का कहा गया है। तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल को 50% की गुंजाइश के साथ खुलने की इजाजत होगी। इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज बन गए। वीज़ों की मियाद ख़त्म होने की फिक्र खाने लगी। इंतजामिया ने वैक्सीन के लिए एक और हफ्ते की तारीख दे दी। एक्सपो सेंटर में इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाने वाले ये अफराद बैरून मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद हैं। इंतजामिया ने इन्हें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। 21 जून को वादा किया गया कि 28 जून को वैक्सीन दस्तयाब होगी। 28 जून को ओवरसीज पाकिस्तानी तो एक्सपो सेंटर पहुँच गए, लेकिन वैक्सीन न लगने से सऊदी अरब, खलीजी मुमालिक, यूरोपीय मुमालिक और कनाडा जाने वाले शहरी परेशानी से दो चार हैं। बाज़ अफराद को तो वीजा खत्म होने की फिक्र खाई जा रही है। 3 हफ्ते हो गए हैं, सियालकोट भी, गुजरांवाले भी, लाहौर भी मैं पहुंचा हूँ, लेकिन किधरे भी वैक्सीन नहीं लगी। सैटरडे को आए तो इन्होंने बोला कि पीर को आएगी 28 तारीख को। तो हमने हेल्प के 10:33 पे कॉल की तो कहते हैं वैक्सीन लग रही है, लेकिन यहाँ पे आए तो ये अभी कह रहे हैं कि 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब बहुत बड़े वैक्सीन सेंटर में ये तीसरा चक्कर है, हम बहुत जलील हो रहे हैं। इमरान खान से हमारी अपील है, हमारी कुछ सुनवाई की, अगर ओवरसीज पाकिस्तान चलता तो इनकी भी सुनवाई की जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम कहती हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जा रहे हैं। अगर एस्ट्राजेनेका नहीं है या फाइजर नहीं है, उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जा रहा है, उनके नंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह लिए जा रहे हैं। जैसे ही आएगी वैक्सीन हम उनको खुद इन्फॉर्म करेंगे। इंतजामिया ये बताने से तो कासिर है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कब दस्तयाब होगी, ताहम एक्सपो सेंटर में मुकामी अफराद को साइनोफार्म, कैनसाइनो और साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। हुकूमती वादों और दावों के बावजूद एस्ट्राजेनेका की खेप एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से इन ओवरसीज पाकिस्तानीज को शदीद मुश्किलात का सामना है। न सिर्फ इनकी वक्त ज़ाया हो रहा है, बल्कि वसाइल का ज़िया भी हो रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर समेत सूबे भर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी के बावजूद अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मोहलिक वायरस मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। 55 नए केसेस की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर की 5 अमवात समेत सूबा भर में कोरोना वायरस से 8 अमवात हुई हैं। अमवात की कुल तादाद 10,729 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,565 टेस्ट किए गए। अब तक 56,03,450 टेस्ट किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 104 नए केसेस की तस्दीक के बाद मजमूई तादाद 3,45,900 हो गई है। आवाम से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। 18 साल से जायद उम्र के तमाम शहरी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। तमाम सेंटर्स पर वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। किसी भी किस्म की रहनुमाई या शिकायत के लिए 1033 पर राब्ता करें। और अब बात करते हैं जौहर टाउन धमाके की। तो दहशतगर्दी का ये मुअम्मा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 4 दिन में हल कर लिया। पुलिस किस तरह दहशतगर्दों तक पहुंची और ये सब किस तरह मुमकिन हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये जौहर टाउन ई ब्लॉक का वो इलाका है जहां पे 23 जून की सुबह 11:09 पर रिमोट कंट्रोल डिवाइस की मदद से धमाका किया गया। में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट ने तफ्तीश में बड़ी मदद की। पुलिस पहले मालिक से जेल रोड के कार डीलर तक पहुंची, जहां से पता चला कि धमाके से चंद रोज कबल पीटर पॉल डेविड ने गाड़ी खरीदी और 21 तारीख को अपने एक साथी सज्जाद मरासी के साथ इसे यतीमखाना के करीब ईद गुल नामी शख्स के हवाले कर दिया, जो गाड़ी को बाबू साबू के जरिए रात 2:59 पर शहर से बाहर ले गया। ये बाबू साबू का वो मकाम है जहां से ईद गुल काले रंग की करोला गाड़ी को लेकर लाहौर से बाहर गया था और 2 रोज बाद जब वो वापस आया तो इसी रास्ते को अपनाया। लेकिन अब उसके साथ ये 1600 सीसी की कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि इसमें बारूद भरा हुआ था, जिसको इस नाके पर रोका भी गया।
ओपन लेटर वाली गाड़ी पुलिस से क्लियर हुई और मतलूबा पॉइंट पर ईद गुल के जरिए पहुंचा दी गई। धमाके से अगले रोज ही पीटर डेविड को इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश पीटर डेविड ने इंकशाफ किया कि उसने ये गाड़ी 21 तारीख को ईद गुल नामी दहशतगर्द के हैंड ओवर की थी, जिसके बाद वो इस होटल में आकर रिहाइश पजीर रहा, जहाँ पे उसके साथ एक लड़की किरण शाह भी थी, जिसके भाई इरफान शाह ने ये गाड़ी उसको औने पौने दामों खरीद कर दी थी। धमाके का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन कातिल गाड़ी का ड्राइवर अभी तक लापता था, जिसको सीटीडी ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहले जना अस्पताल और उसके बाद चौक यतीमखाने के पास देखा, जिसके बाद इसका खुरा रावलपिंडी तक जा पहुंचा, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूं पुलिस ने 4 रोज में इस केस को हल कर लिया, जिसके बारे में पहले यही तासर था कि शायद ये धमाका वक्त की धूल के साथ कहीं गुम हो जाएगा। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और उज़्बेकिस्तान के कारोबारी वफ्द का नौवीं के डिप्टी गवर्नर के हमरा ऑर्गन फैक्ट्री का दौरा। उज़्बेक वफ्द ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में सरमायाकारी करने पर आमादगी का इजहार किया। गवर्नर पंजाब और उज़्बेकिस्तान के कारोबारी वफ्द ने नौवीं के डिप्टी गवर्नर के हमरा ऑर्गन फैक्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर ऑर्गन फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर मियां तलत और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद ने वफ्द का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर मियां अब्दुर्रहमान और डायरेक्टर मियां नुमान तलत भी मौजूद थे। वफ्द को ऑर्गन फैक्ट्री के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई। उज़्बेकिस्तान के कारोबारी वफ्द ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में सरमायाकारी करने पर आमादगी का इजहार किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, जबकि डिप्टी गवर्नर उज़्बेकिस्तान का कहना था तिजारत को फ़रोग देने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।